everything gradually, with the development of human race and with the lapse of time, being converted from the paper to internet on a web, now which became more intangible. पीस ऑफ पेपर को तो फिर भी आप पकड़ सकते थे हाथ में, ये डिजिटलाइजेशन में तो आपका कंट्रोल ही नहीं है कुछ. देयर इज नथिंग टेंजिबल अबाउट इट, इट्स एवरीथिंग इन द एयर. और जब ऐसा डेवलपमेंट हुआ तो लॉ नीडेड टू कैच अप. उसके बारे में भी कानून बने, ऐसी आवश्यकता महसूस हुई. क्योंकि अगर आप देखें तो लॉ बेसिकली कैचेस अप. थिंग्स हैपन अर्लियर एंड देन द लॉ इज मेड अबाउट इट. जब क्राइम होना शुरू हुए तो क्राइम लॉ आया. जब प्रॉपर्टीज रिकॉग्नाइज होनी शुरू हुई तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉ आया. जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात आई तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉ आया. एंड दैट इज हाउ व्हेन थिंग्स गॉट डिजिटलाइज्ड इट वाज फेल्ट द नीड टू हैव लॉ टू रिकॉग्नाइज द राइट ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म. और बहुत से तरह के कंसेप्ट डेवलप होने शुरू हुए, जिनमें से एक है DRM, डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट. नाउ व्हाट इज दिस डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट? समटाइम्स by these heavy names people get confused. Oh my god, पता नहीं क्या है ये. इसलिए ये इतना सारा प्रिकर्सर मैंने आपको दिया, that it becomes easy for you. It's nothing extraordinary. It's the same concept but on a new platform. The way you were copywriting tangible things on a piece of paper or on a drawing or on architecture, now it is all on digital. I remember long ago when I went to Jagannath Puri, I saw sand architecture on the beaches. आज वो सैंड आर्किटेक्चर मुझे मोबाइल पे देखने को मिलता है. किसी ने वहां जाके फोटो खींची, अपलोड कर दिया, आप सब देख रहे हैं. आपको जगन्नाथपुरी जाने की जरूरत नहीं है, यहीं बैठे बैठे आप सैंड आर्किटेक्चर देख रहे हैं. अभी हाल फिलहाल में मैंने सुना कि किसी लेडी को प्लेटफॉर्म पे किसी ने गाना गाते सुना, उसको शूट कर लिया और वो लेडी बड़ी पॉपुलर हो गई. उसको बहुत ऑफर्स आ गए सिंगिंग के. मैं जाने कितने दिनों से भाषण दो, किसी ने मेरा कैप्चर नहीं किया आज तक. आई डोंट नो व्हाई दिस पॉपुलैरिटी इज एल्यूडिंग मी. पर ये डिजिटल एरा का कमाल है. उम्मीद जारी है, बोले जा रहा हूं, किसी ना किसी दिन कोई शूट कर लेगा, हम भी कुछ कर दिखाएंगे. मगर ये जो डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट है, इसके कंसेप्ट को समझने की जरूरत है. भारत का कॉपीराइट एक्ट 1957 का है, जिसमें हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिलेटेड टू लिटरेचर, म्यूजिक, ड्रामा, आर्किटेक्चर. और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इफ यू सी दिस द प्रोविजंस ऑफ कॉपीराइट एक्ट ऑफ सेक्शन 13, gradually we kept on improving. So now here, these are the intellectual property rights, the areas in which the DRM works. That these areas must be on digital platform. If they are, DRM works. So what is DRM? Now what happened is, way back in the year 1983,
a Japanese engineer developed a program called software system. Now, this software service system was a unique idea at that time. In 1983, in most part of the India, we did not even have television. Gradually it expanded, but in Japan, probably the digital work had begun. So in 1983, the Japanese engineer brought the concept of software service system. The software service system was based on a concept called encryption. Now you'd be surprised that this system was not a software. The name suggests it's a software service system, but this was basically a hardware. A hardware which was to be connected to the device to decrypt what is encrypted. So the encryption was decryptioned by this hardware, and if you want to decrypt, you will have to pay to the owner of that digital property, because you are the one who's seeking that decryption of that encrypted property. So you'll have to pay and then get it decrypted. So that is how that function worked through an hardware. But with the advent of time, all that concept also got obsolete. This was the primary, very initial 1983. Now there are software to manage DRMs. Now we don't have to resort on a hardware to do that. So gradually, with the lapse of time, new technology came and various types of DRMs came. Now, the types of DRM, if we see, these are methods by which you manage your digital rights. There are multiple methods. And remember, the interesting factor is that whoever may have invented these management systems would have done a copyright on that system as well. तो आप जो भी सिस्टम अडॉप्ट करते हैं उसकी रॉयल्टी भी आपको पे करनी पड़ रही, बिकॉज दैट सिस्टम इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ द क्रिएटर ऑफ दैट सिस्टम, isn't it? So it's a very interesting web, और इसीलिए हम डिजिटल वर्ल्ड को वेब वर्ल्ड कहते हैं. सब कुछ वेब है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है. Now, if you see types of DRM, first system is a key method. That if you want to utilize a software or to go through that software, you must have a key, otherwise you can't open it. So that means that digital platform is locked. जैसे आपके घर टेंजिबल प्रॉपर्टी को आप लॉक करके रखते हैं, आपके बिना परमिशन के, बिना चाबी के कोई घुस नहीं सकता. चोर की बात अलग है, उसको सब फ्रीडम है. चोर तो यहां भी हैं, और यहां के चोरों को हम हैकर्स कहते हैं. वो भी अपनी चाबी लेके घूमते हैं मास्टर की, कहीं भी कुछ भी खोलते हैं. बट अदरवाइज फॉर सिविलाइज्ड पीपल लाइक अस, की इज नेसेसरी. चाबी के बिना हम अंदर नहीं जा सकते, चाहे वो डिजिटल वर्ल्ड हो या टेंजिबल प्रॉपर्टी हो. द अदर वन इज परसिस्टेंट ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन.
जब आप किसी वेबसाइट पर एंटर होना चाहते हैं और वो वेबसाइट अगर प्राइवेटाइज्ड है तो आपको ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन अगर नहीं है आपके पास तो आप उसको क्रैक नहीं कर सकते, अंदर नहीं जा सकते। अभी एक बहुत सारा ऐड आता है, एक बच्चों की पढ़ाई को लेके कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म बना है, तो आप चाहें तो आप उसमें जाना चाहें तो नहीं जा सकते, क्योंकि आपको वो ऑथेंटिकेशन, ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन नंबर खरीदना पड़ेगा, तभी आप वो नंबर डाल के ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि यू आर अ मेंबर ऑफ दैट, एंड देन ओनली यू कैन एंटर इनटू इट। सो बहुत सारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेलेबल है, पर आपको पे करना पड़ेगा। जैसे अगर आपको कोई अच्छी बुक पढ़नी है तो वो बुक खरीदने के लिए पेमेंट करना पड़ता है, अनलेस ऑफ कोर्स यू आर अ मेंबर ऑफ दिस ऑगस्ट लाइब्रेरी। लेकिन लाइब्रेरी की मेंबरशिप के लिए भी पेमेंट करना पड़ता है, उसके बाद आप बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही डिजिटल वर्ल्ड में ऑथेंटिकेशन अगर आपके पास है तो आप अंदर जा सकते हैं और उस ज्ञान को समेट सकते हैं। अनदर मेथड इज अ मेथड ऑफ लिमिटेड इंस्टॉलेशंस, यानी कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर मार्केट से खरीदना चाहते हैं कि मैं अब ये परचेज करके इसको यूज करना चाहता हूं, तो उसके सेलर ने उसको आपके डिवाइस पर अपलोड करने के लिमिटेड नंबर रख दिए कि देखिए भैया, आप अगर ये मेरा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 कंप्यूटर पे आप इसको अपलोड कर सकते हैं। ये नहीं कि आप सारे मोहल्ले के कंप्यूटर्स पे उसको अपलोड कर लें और आप पैसे लेने लगें। अरे मेरे पास है, मैंने खरीदा है, चाहिए लो पैसे दो, मैं तुम्हारे पे लोड कर देता हूँ। तो जो ओरिजिनल क्रिएटर है वो तो साइड में रह गया, आपका बिजनेस शुरू हो गया। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक और मेथड है डीआरएम का, जहां आप जब प्रोडक्ट खरीदते हैं तो सेलर ने इंस्टॉलेशन ही लिमिट कर दी है, और इसीलिए जब लाइब्रेरियंस कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो उसके मल्टीपल इंस्टॉलेशंस का पैकेज अलग होता है, उसका प्राइस अलग होता है। सॉफ्टवेयर वही है पर चार्जेस डिफरेंट है। यू पे ऑन अ हायर साइड बिकॉज यू want it for a multiple installations. A personal computer holder just pays 1 or 2 installation, or maximum 3 if you negotiate better. तो वही सॉफ्टवेयर का प्राइस कम पे कर रहे हैं आप। तो ये एक और डीआरएम का मेथड है। नेक्स्ट इज कॉपिंग इंस्ट्रक्शंस। आपने अगर सॉफ्टवेयर खरीदा और आप चाहते हैं कि उसको मैं कॉपी करूं, तो यू विल फाइंड एक बॉक्स एमर्ज होगा, फॉलो दीज स्टेप्स देन ओनली यू कैन कॉपी। और आप देखेंगे कि उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल में कहीं ना कहीं कोई लिमिट होगी। जैसे बहुत सारे लीगल सॉफ्टवेयर हैं, उनमें अगर आप किसी जजमेंट को कॉपी करना चाहते हैं या प्रिंट करना चाहते हैं, तो वो जजमेंट आप चाह के भी, कई सॉफ्टवेयर ऐसे हैं कि पूरा का पूरा जजमेंट आप एक साथ कॉपी नहीं कर सकते। देयर इज अ लिमिट कि आप 500 वर्ड तक करिए, फिर बाहर आइए, सेकेंड टाइम गो अगेन, रेस्ट ऑफ द 500 वर्ड का कीजिए। That means they are making it limitation on your copying. There is an instruction manual कि कितना कॉपी कर सकते हैं। कुछ अभी सॉफ्टवेयर ऐसे आए हैं जो पूरा जजमेंट भी आपको एक बार में करने को देते हैं। It differs, but there are instruction manual that this is the only way which you can copy. आप चाहें कि मैं पूरे सॉफ्टवेयर को कॉपी कर लूं, try it.